We hope you had an enriching and inspiring first day filled with learning, discussion, and innovative thinking. Yesterday, we all explored design thinking, problem identification, entrepreneurial innovation, and real world problem solving approaches. Today, we move a step further from understanding problems to creating meaningful solutions and building pathways for business success. Through customer discovery, empathy driven innovation, value proposition design, and exposure to the incubation ecosystem, today's session will help transform ideas into impactful ventures. Let us begin day 2 with a brief recap of day 1 and an overview of today's objectives. To guide us through the recap and set the context for today's journey, I would like to invite our respected speaker to share the highlights of day 1 and objectives for day 2. Please, sir. Yeah, thank you so much. So please join us here. So good morning everyone. So I hope आपने होमवर्क करके आए होंगे. आपको याद भी है कि होमवर्क क्या दिया था? नहीं याद है? And are you sitting as per your teams? आप अपने अपनी टीम्स के साथ ही बैठे हैं? 5 नहीं? Please sit with your teams, ma'am. Okay, we'll begin this session. Yesterday we started with basic understanding of entrepreneurial mindset. Sir guided us on what is entrepreneurial mindset, design thinking. Anyone can give me a recap on design thinking? Have you understood the design thinking process? और why design thinking is required? Right. So सर ने हमें कल बताया कि डिज़ाइन थिंकिंग अगर ना हो तो आप कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप खुद के लिए प्रोडक्ट बनाते हो. Until and unless you empathize with the customer and try to understand their issues, their problem, we cannot build a product, or that product cannot be sold in the market. And that is the reason 80% of the startups are failing. Because where they are lagging in understanding the customers. If you don't understand the customers, you won't be able to empathize with them. You won't be able to build a product that is needed for the customer. And that will lead to a failure, right, sir? Yes. So, empathy was the first thing we kept in my mind. What was the second step? What we do after empathizing with the customer? Ideate, right? Ideate? Sorry, define. Problem definition. एक बार कस्टमर के साथ एम्पथाइज करो. What do you mean by empathy? Empathy means putting yourself into someone else's shoes. आपको दूसरों का दर्द महसूस करना है, उसके पेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने हैं, और उसके बाद वो एक बार आप समझ गए तो आप डिफाइन कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है. प्रॉब्लम का मतलब बहुत बार ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? जैसे हमने कल पर्स का एग्जाम्पल लिया, सिंपल पर्स का एग्जाम्पल था, बट कितने सारे प्रॉब्लम्स उभर के आए, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स ही है. अगर इनको हमें एड्रेस करना है तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस उसमें ना हो. सो हमें डिफाइन करना पड़ेगा. वंस वी डिफाइन देन वी आइडिएट. आइडिएशन में रिटरेटिव प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक कि हमने डिसाइड कर लिया. देयर कैन बी अ मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, राइट? एक ही पर्स के एग्जाम्पल में हमने देखा कि सबकी नीड्स अलग अलग हैं, सबकी कैटेगरीज अलग अलग है. जेंट्स की अलग है, लेडीज़ की अलग रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ायर्स अलग है, और वो सारी चीज़ों में हमें डिस्कस करना पड़ेगा कस्टमर के साथ. हमें एक दूसरे के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद हम आइडिएट कर सकते हैं. वंस वी आइडिएट देन So in ideate, when we are getting multiple ideas or multiple ways of solving a problems, we should not get biased towards the problem. So sometimes what happens is, knowingly or unknowingly, so we will, if there are 4 or 5 ideas,
So without looking into merits or demerits, directly we'll say that this idea is better, this idea will work out, or whatever I have proposed in the team, so this is better. So in that way. So without having such biasness, we need to look into merits and demerits, whether it will work out in reality or not, whether it is really solving the problem or not. We need to be open towards ideation. Yes, sir. You may continue. Yeah, once ideation is done, then we start building a prototype, a normal version of the product. It's not a full-fledged product, बट एक मॉडल हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है कैसे दिखेगा. तो वो मॉडल पेन पेपर पे हो सकता है, बॉक्स का बना हुआ हो सकता है, कैसा भी बना हो सकता है. एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप आती है प्रोटोटाइप. आप एक डिज़ाइन बनाते हो, आप डिसाइड करते हो कि वो कैसा दिखेगा, वो एक आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो. उसके बाद आता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. प्रोटोटाइप कैन नॉट बी वर्केबल. मतलब ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन बना रहे हो, तो मशीन का आपने एक डिज़ाइन बनाया या कार्डबोर्ड से वो मशीन कैसे दिखेगी वो बनाया, तो वो प्रोटोटाइप हो गया. बट आपने एक्चुअल सेंसर्स वगैरह सब कुछ यूज़ करके एक मशीन बनाया जो फुल फ्लेज नहीं है, बट वो अपना काम कर रहा है, जो मिनिमम काम उसने करना चाहिए वो अगर कर रहा है, तो हो गया मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बाद की स्टेप आती है जब आप फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते हो और वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो. बट द प्रोटोटाइप इज डिज़ाइनिंग कि प्रोडक्ट वो कैसे दिखेगा. सर आप कुछ ऐड करेंगे? So mostly prototypes. So we'll understand that the prototype should be functional prototype. It needs to be work. So we should not get confused with this prototype. Actually, prototype is not a final product. So prototype is not an MVP. It is only to convey our idea properly. So a drawing भी prototype हो सकता है, a drawing भी, और नहीं तो कार्डबोर्ड और पेपर से we can build our model and we can show it. That is also a prototype, whereas working model is also a prototype. So the prototype is to display our idea effectively to the other person. Other person may be your customer or a person who will be judging your project, or else also who may be funding you, a venture capitalist. Very initial stage. एंड लास्ट स्टेज आती है टेस्टिंग की. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ओला का एंड चेतक का. व्हाट हैपन्स विदाउट टेस्टिंग इफ़ यू डोंट गो फॉर मार्केट टेस्टिंग. इसलिए कोई भी बड़ी कंपनी भी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में फुल फ्लेज में लॉन्च करते हैं उससे पहले टेस्ट मार्केटिंग करते हैं. टेस्ट मार्केटिंग मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे पाउच में आपको देते हैं, आपको बोलते हैं टेस्ट करो और आपका फीडबैक दो, राइट. तो वो टेस्ट मार्केटिंग होता है. जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो डायरेक्टली परोसते नहीं है ना. एक बार सब्जी कंप्लीट होने से पहले थोड़ा सा हाथ पे लेके टेस्ट करके देखते कि सब कुछ ठीक है ना, नमक सही है कि नहीं, और फिर लास्ट में हम जाते हैं कि नहीं हाँ अच्छी बनी है तो हम परोस सकते हैं. तो सेम गोज़ विथ प्रोडक्ट. हमें टेस्ट करके देखना है. अगर टेस्ट करने के बाद हमें जब पता चलता है कि सब्जी में नमक कम है तो हम नमक ऐड करते हैं या कुछ मसाला ऐड करते हैं, तो आप अब उसको और बेटर करने की कोशिश करते हो. तो ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस टेस्ट के बाद ख़त्म नहीं होती. इट इज़ रिटरेटिव प्रोसेस. मतलब टेस्ट करने के बाद अगर हमें पता चला कि हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था और जो डिफाइन किया था वो अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो टेस्ट के बाद फिर से हम वापस जाते फर्स्ट स्टेप पे. रिटरेटिव प्रोसेस अगेन एंड अगेन, बार बार सेम चीज़ें हमें करनी पड़ती है. और इसीलिए आप देखिए ना, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट कितने चेंज होते रहते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं. आपने वो संतूर की एडवर्टीजमेंट देखी है ना, बहुत सालों से चल रही है, और एडवर्टीजमेंट का कंटेंट एक ही होता है, संतूर मम्मी, राइट. मतलब आप कितना भी एज क्यों ना हो, आप यंग दिखोगे. एक लड़की आती है भागते भागते और जोर से बोलती है मम्मी, और वो सब चौंक जाते हैं कि मम्मी कैसे बोला. अभी ये छोटा सा प्रोडक्ट है. आप देखिए ये प्रोडक्ट सेम है क्या? लास्ट 10 ईयर्स में सेम रहा है क्या? एडवर्टीजमेंट सेम है क्या? एडवर्टीजमेंट की कॉन्सेप्ट सेम है. मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, कुछ म्यूजिक चेंज होता रहता है, उसका पैकेजिंग चेंज होता रहता है, कलर चेंज होता रहता है, और वो बार बार चेंज करते रहते हैं. क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि आप अगर सेम ही प्रोडक्ट सालों तक चलाओगे तो वो नहीं चलेगा. उसका एक टाइम बाद प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है. जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है वैसे भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है कि हम प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं,
उसके बाद एक ग्रोथ स्टेज पे आता है, मैच्योरिटी स्टेज पे आता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है. मतलब सेल्स बढ़ता है, फिर बहुत ज़्यादा होता है, इतना बढ़ जाता है कि अभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ता है, कुछ और एडिशन कर देते हैं. कोई कभी कभी एडवर्टीजमेंट आती है कि अभी लक्स में सोने के सिक्के हैं, तो लोग लक्स बाय करना स्टार्ट कर देते हैं. कभी करीना कपूर आ जाती है, कोई और आ जाता है, तो बार 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 ये सेम प्रोसेस चलती रहती है. सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, इट्स नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाता है, कंटिन्यूसली कस्टमर को पूछा जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं. करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आईटीसी वगैरह ये जो कंपनीज है करोड़ों रुपए खर्च करती है ओनली फॉर मार्केट रिसर्च, और वो बार बार मार्केट रिसर्च करते रहते हैं. एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ITC स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज और से 5 करोड़ रुपीज इन एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपीज पे कर रहे हैं. तो 5 करोड़ रुपीज अगर वो कंपनी सैंक्शन कर रही है तो वो किस बेसिस पे कर रही है? जस्ट बिकॉज वन मैनेजर सेज कि ये एडवर्टीजमेंट मुझे अच्छे लग रही है तो कर दो, ऐसा नहीं होता है. इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा. आपको उस एडवर्टीजमेंट भी, अगर वो कोई कंपनी रन करती है, उसका भी सर्वे होता है कि वो एडवर्टीजमेंट लोगों को पसंद आ रही कि नहीं आ रही है, उससे सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. और वो मार्केट रिसर्च का डेटा जब कोई रिसर्च कंपनी उनको ऑथेंटिकेट करके देती है, उसके बेसिस पे कितना पैसा एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करना है, इसका डिसीजन होता है. तो जब करोड़ ऑफ रुपीज इन्वॉल्व हो मार्केटिंग में भी, तो वो भी जस्ट एक मैनेजर कह रहा है बैठ के कहीं पे और वो बोल रहा है कि मुझे एडवर्टीजमेंट अच्छी लगी, इसके वजह से नहीं होता है. उसके लिए वो भी बार बार वो प्रोसेस होती है, रिसर्च होता रहता है. तो सेम गोज विद प्रोडक्ट डिज़ाइन, और यही जो साइकिल है वो बार बार चलते रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इटरेटिव प्रोसेस. देन वी yesterday again discussed with disruption model, right? So what is disruption model? हमने ये सारे प्रोडक्ट्स देखे, मैंने आपको पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल बताई कि कितना डिसरप्शन टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ है, हमने वो डिस्कस किया कि व्हाई वी नीड टू डिसरप्ट. डिसरप्शन मॉडल इज फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन. हमें अगर कुछ नया लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, नई आइडिया अगर कोई स्टूडेंट्स लेके आते हैं, तो हमें स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा. जैसे हमने वो एग्जांपल लिया ओला उबर का, कि हम सालों तक यही सोचते रहे कि हमें चौराहे पे जाना पड़ेगा, वहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा. बट एक बंदा कोई तो आया और उसने सोचा कि नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों हो, राइट? ही क्वेश्चन द स्टेटस को, और उसने बोला कि नहीं, ऑटो वाला मेरे घर पे आना चाहिए, मैं मोबाइल से बुक करूँगा. हम सालों से सोचते थे कि हमें होटल में जाके ही खाना पड़ेगा, बट किसी ने सोचा कि हम ही होटल में जाके क्यों खाएं, होटल वाले खाना हमारे पास डिलीवर क्यों नहीं करे, और जोमेटो आ गया, जैसे जेप्टो आ गया, स्विगी आ गया, राइट? एंड देर आर मेनी सच एप्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, राइट, अर्निंग करोड़ ऑफ रुपीज़. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम ही वहाँ क्यों जाए, वो हमारे डोर स्टेप पे आए, राइट? इसमें पेन पॉइंट क्या आइडेंटिफाई किया, जैसे सिटीज़ में लोग हैं, अभी काम करते हैं, वर्क है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो दे कुड नॉट स्पेंड मच टाइम इन गोइंग आउट, सो दे कैन जस्ट ऑर्डर फूड ऑनलाइन और घर पे आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं छोटा सा प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड समवन हैज़ क्वेश्चन द स्टेटस को, एंड दैट्स हाउ दिस डिसरप्ट मॉडल केम. तो डिसरप्शन में क्या होता है, बिल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंक्लूड में और फीचर ऐड कर सकते हैं, सेपरेशन में एक प्रोडक्ट है उसमें से कोई आइडियाज़ अगर हम सेपरेट करके देख सकते हैं, और इन सब का हमने एग्जांपल देखा. रीपर्पस, एक प्रोडक्ट एक चीज़ के लिए यूज़ होता था, अभी किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है. यूनाइट, कंबाइन 2-3 थिंग्स टुगेदर. पर्सनलाइज, कस्टमाइजेशन, हमने वो कल एग्जांपल्स लिए, जैसे गिफ्ट्स आइटम्स वगैरह होते हैं जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड ट्रांसप्लांट, अप्लाई आइडियाज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, सेम आइडिया बट न्यू कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं, ये मॉडल जब हम यूज़ करते हैं तो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर ये सारी चीज़ें अगर हम ना करें तो स्टार्टअप के फेल्यूर के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड देन सर एक्सप्लेन्ड अस अबाउट द प्रॉब्लम प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एंड वी वर एट द स्टेज जहाँ पे हमने आपको होमवर्क दिया था जो आपको करके आना था, जो आप करके नहीं आए हो.
तो अभी मुझे बताइए कितने टीम्स आ गए, कितने सीईओज है यहाँ पे? आई विल काउंट सीईओ एज अ टीम. अभी आप किसी सीईओ के टीम में उनके टीम मेंबर नहीं आए हैं तो वो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ड्रीम्स अनलिमिटेड, इज दिस टीम हियर? ड्रीम्स अनलिमिटेड, यस और नो? यस, इट इज देयर. राजा भोज, यस. Infosys, yes. Khandwa 5, Devas 2, yes. Devas 1, Lajawab, yes. Friends group है, Friends group भी है. शिवाजी, महाकाल नहीं है, 2 टीम नहीं है. विंध्याचल है. क्षिप्रा टीम नहीं है. स्वामी विवेकानंद, इंस्पायर, आप हो ना, आप ही टीम हो. जो टीम ने काम नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा. यू आर द सीईओ. पीएम श्री स्कूल्स, पीएम श्री दाही. भगोरिया ग्रुप है, ओके, इस साइड है. नर्मदा, यूनिटी, देखो यूनिटी में एक ही बंदा है. कितनी यूनिटी है आपकी? अच्छा, 2 है, वो भी 2 कॉर्नर में बैठे ना. देखो कितनी यूनिटी है. स्वामी विवेकानंद, चौरसिया एंड कंपनी, वो पूरी कंपनी है. देखो, इंदौर नंबर 1, मां नर्मदा एग्रो. ठीक है, आप बन जाओ सर. उड़ान आ गए. फर्स्ट क्राई वाले आप पे केस कर देंगे. एड ऑन, किंगडम, न्यूटन एंड यूनिक. आपके पास वो पेपर्स है क्या कल वाले? हाँ, चलो अभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो और जो सीईओज है उनको एक एक पेपर दे दो. आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए क्या? नहीं किए हैं? कर लिए. सर क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है? वॉलंटियर, कैन यू प्लीज गिव सर माइक? स्कूलों में क्या है कि अभी जब स्कूलें चालू होती है उसके पहले क्या होता है, गवर्नमेंट फ्री टेक्स्ट बुक जो है वो सप्लाई करती है. पर शुरू में क्या होता है कि एक अनुमानित संख्या लेते हैं वो, और उसका भी 50% किताबें आती है. तो लगभग ये है कि सत्र चालू हो गया है, स्कूलें चालू हो गई, पर पूरी किताबें सभी को मिल नहीं पाती है. यह समस्या है. ठीक है, थैंक यू सर. तो हम बस अभी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में नहीं. जो शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चे रहते हैं उनके प्रवेश कराने में आने वाली जो समस्या है उनको कैसे दूर किया जाए? मतलब Okay. जो बच्चे, कौन से बच्चे सर? मैं वो सुना. शाला त्यागी और अप्रवेशी. हाँ, ड्रॉप आउट्स. ओके, यस सर को दीजिए. यहाँ सामने यहाँ पे. हमारे यहाँ स्थिति ये है कि बच्चे तो आ जाते हैं लेकिन टीचर की समय पे नियुक्तियाँ नहीं होती है. टीचर के हाँ, अभी वोकेशनल की बात करें, अपन बातें कर रहे हैं बहुत सारी. 15 जून से स्कूल खुल गया, 16 जून से, और हमारे यहाँ वोकेशनल क्लासेज हैं. वीटी और आईटी की नियुक्ति नहीं हो पाई. उस वजह से एडमिशन चल रहा है अब, ठीक है, अब हुई है, एडमिशन चल रहे हैं. और एडमिशन 30 जून तक सभी बच्चे के आईटी बीटी के टीचर ही नहीं है, ऐसा माहौल बनाया गया हमारे विद्यालय के अंदर. तो बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया कि टीचर ही नहीं है. अब 1 तारीख को टीचर आया, अब उन बच्चों को उठा रहा है, अवेयर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है. तो स्कूल स्टार्ट होने से ही पूर्व यदि नियुक्तियां हो जाए, और विशेष रूप से वोकेशनल वालों की, गेस्ट टीचर भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनका तो ऑप्शन ही नहीं है ना. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग हर साल फेस कर रहे हैं. हाँ, बट हमें समस्या ऐसी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या ना हो. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या अगर है, मतलब प्रशासकीय समस्या अगर है, तो उसका आंसर प्रशासकीय अधिकारियों के डिसीजन मेकिंग में या उसी में आ जाएगा.
हमें सोसाइटल ऐसी समस्या सामाजिक या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्या झेल रहे हैं, ऐसी अगर समस्या हम लेके आते हैं तो उसके सोल्यूशन में हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रशासकीय चीज़ों में हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो एज अ ग्रुप ऐसी समस्या, सर को माइक दीजिए प्लीज़, ऐसी समस्या आप आइडेंटिफाई, ऐसा प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करें जिसके लिए हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसके लिए हम कोई सर्विस बना सकते हैं। मे बी फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कैन वी स्टार्ट अ समथिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट और समथिंग, और इफ़ यू लुक एट द ब्रॉडर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया और नॉट गेटिंग ट्रेनिंग, राइट। सो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? सो डू नॉट उनको बस एक कन्फाइन मत कीजिए एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक ब्रॉडर पिक्चर अगर लेके आप चलते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा और उसके लिए हम सॉल्यूशन बिल्ड कर पाएंगे। जी सर। नमस्कार सर, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम इंदौर शहर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वीमेन हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। सुबह 7 बजे से लोग अपने कार्य के लिए चले जाते हैं, तो उनके लिए हम टिफ़िन फैसिलिटी अवेलेबल कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी टीम ने कुछ निर्णय किए हैं। वो निर्णय आगामी उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। फिर भी और एक चीज़ है, अभी हमें बस प्रॉब्लम चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढने की प्रोसेस का हमें फॉलो करना है। बच्चे भूखे हैं, लोगों को खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, जो हॉस्टलाइट्स है उनको खाने का प्रॉब्लम होता है, घरेलू खाना उनको नहीं मिलता है, तो ऐसा हमें प्रॉब्लम। यस सर। हमारी टीम है सर, हमारे ग्रुप लीडर है। एक और विचार मन में है, रॉ वेजिटेबल्स प्रोसेस किया हुआ घर घर में और ऑनलाइन, जैसे अपने मीनू कार्ड होता है, कटी हुई भिंडी, छटी हुई मेथी हम घर घर पहुँचाते पैकेट बनाकर, तो एक बल्टी में झगड़ा भी नहीं होगा, तेरा क्या बना मेरे क्या बना एक जैसे ही बनेगा। तो ऐसा पहुँचा पाएँ प्रोसेस करा के, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेडीज़ का भी, वर्किंग लेडीज़ है उनके लिए, राइट। सो आपका प्रॉब्लम सेम ही है। जो वर्किंग क्लास पीपल है उनको टाइम नहीं मिल रहा है या स्टूडेंट को टाइम नहीं मिल रहा है, तो देखो आपके इसमें ही 2 सॉल्यूशन अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर हम ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव्स अगर ढूंढते रहे तो शायद आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आ सकते हो कि वो बहुत ही अलग हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि सर ने बोला कि हम टिफ़िन देंगे, बट आपने बोला कि प्रोसेस फूड अगर मिल जाए या फिर सेमी प्रोसेस फूड अगर मिल जाए, कटी हुई भिंडी वगैरह ऐसा, और पुणे जैसी सिटी में मिलता भी है आजकल, कि आप बस वो मंगा लो और झट से बना दो, तो वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और लोगों को घर का खाना भी मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन बिल्डिंग इज डिफरेंट प्रोसेस। यस, समवन एल्स। सर, आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स आते हैं, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई प्रोडक्ट ऐसी बनाई जाए जिससे कि फ्रूट्स हमको मालूम पड़े कि ये जो है केमिकल युक्त है या नहीं। ओके, ये बनाना चाहते हैं। यस सर, नॉर्मली ये देखने में आता है कि स्वच्छता के ऊपर तो हम काम करते हैं, और कई लोग जब कचरे की गाड़ियाँ आती है तो अपने घरों का कचरा उसमें डालते भी हैं, लेकिन एक कॉलोनी के अंदर कुछ अपवाद स्वरूप लोग भी रहते हैं जो जानबूझकर उस कचरे को उस गाड़ी में नहीं डालते हैं और घरों के पीछे डालते हैं, जिसके कारण वो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको तो होती है, लेकिन जो उसके पास में रहता है, जो सफाई करता है प्लस वो गाड़ी में डालता है, फिर भी वो गंदगी में रहता है। तो ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए ताकि वो मजबूर हो जाए कि वो अपना घर का कचरा गाड़ी में डालें। नहीं कर सकते इसके लिए डिज़ाइन? नहीं, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि उन घरों में एक सायरन लगा दिया जाए। नहीं, सॉल्यूशन पे सायरन लगा के सॉल्यूशन पे मत जाइए। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है लोगों की, तो उसके लिए प्रशासन क्या कर सकता है? कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, कैमरा हो सकता है, सायरन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड। अगर हमने प्रॉब्लम को वेल डिफाइन कर लिया तो वहीं पे हमने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट्स वाई देयर आर मेनी क्वेश्चंस कि
प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से टाइम पे हो रहा है, कौन से एज ग्रुप में वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में आनी चाहिए. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना यही एक बड़ी टास्क है. स्टार्टअप का फेल्योर ही इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ द बेसिक थिंग. उसको अगर हमने डिफाइन नहीं किया, आगे का आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन गलत हो जाएगा, आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाएगा, आपका मार्केटिंग गलत हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें गलत हो गई तो आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा. Why we are spending a lot of time in problem identification, problem. हम क्यों बोल रहे हैं? या कल मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको बोला था, do not fall in love with the solution, fall in love with the problem. Why we need to fall in love with the problem? प्रॉब्लम से प्यार क्यों करना है? क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को डिफाइन अच्छे से नहीं कर सकते, आगे की पूरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी वेस्ट हो जाती है. जी सर. सम्मानी मंच और सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्ते. मैं खंडवा ज़िले से पीएम श्री पटाजन से हूँ, और हमारी जो टीम है खंडवा 5, इसमें एक सामाजिक समस्या को हमने यहाँ पर जाना है. अभी वर्तमान में पेट्रोल की बड़ी समस्या चल रही है सभी दूर. कई जगह उपलब्ध हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, रेट भी बढ़ चुके हैं. तो इसके ऑप्शन में जो ई बाइक चली है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक वाहन जितने भी टू व्हीलर चल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है, फ़ायदा तो है, पेट्रोल नहीं लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है. इसको एक आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं खरीद पा रहा है. कोई स्कूटी 1.25 की आ रही, कोई 1.50 की आ रही. तो इसकी कीमत में कम होना चाहिए, कीमत में कटौती होना चाहिए कि एक आम परिवार, मध्यम व्यक्ति वर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्ति भी इसको आसानी से खरीद सके. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ज़्यादा पहुंच जाता है. अभी तक जो पेट्रोल वाली बाइक आ रही है उससे डबल 1.5 गुनी कीमत की आ रही है, इसलिए बहुत सारी समस्या है. तो इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. तो आपको ये अभी इसमें यहाँ ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर कि व्हाट आर द रीज़न वाई कॉस्ट ऑफ EV व्हीकल्स आर हायर दैन पेट्रोल व्हीकल्स. क्या ऐसा रीज़न है, वो आपको आइडेंटिफाई. आप चैट GPT कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो. यू हैव टू गो डीपर इन द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, जब तक वो हम नहीं समझते हम सॉल्यूशन लेके नहीं आ सकते. क्यों उसके प्राइजेस क्यों हाई है? कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ज़्यादा लग रहा है? बैटरी की प्राइजेस ज़्यादा है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा क्या उसमें यूज़ हो रहा है कि जिसके प्राइजेस या कॉस्ट हाई है, इसके लिए ओवरऑल प्राइस हाई है. तो हमें वी नीड टू गो डीपर इन द प्रॉब्लम. दिस साइड. यस सर. सर, हम लोगों की टीम ने एक कंपनी बनाने का सोचा है. राइट. अब उसका जो नाम है फर्स्ट क्राई. यस सर. वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है. हाँ. पर हम उसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, बिल्ड ए फैमिली. उसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ बच्चे भारत में जन्म लेते हैं, उनमें से लगभग 1 करोड़ के समथिंग मध्यम वर्ग के होते हैं. अब मध्यम वर्ग के व्यक्ति क्या है कि सर्विस भी करता है और अलग अलग प्रोडक्ट को जाकर अलग अलग दुकानों पे मिलते हैं वो. तो उनको एक ही छत के नीचे लेके आना, तथा बच्चे क्या बोलते हैं, जब छोटे होते हैं तो दाई या कुछ ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उन लोगों को भी उसी छत के नीचे उनको मिल जाए. ऐसा मतलब उनके खेल खिलौने, उनकी दवाइयाँ, सारा प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक ही छत के नीचे मिले, ऐसा एक वो तैयार किया जाए. और हर शहर में इस प्रकार से एक एक करके उस स्टार्टअप को आप अभी सॉल्यूशन के बारे में बोल रहे हो, बट अगर आपको ये समस्या ये है सर, मध्यम वर्गीय व्यक्ति 10 जगह जाने के बजाय एक ही जगह पे उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी. कौन से एज ग्रुप के लिए आप बोल रहे हैं? ये 0 से लेके 5 साल तक के. तो हाँ, तो आपका अगर आप जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हो तो अभी आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि 0 से 5 साल तक के लिए के बच्चों के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, कपड़े हो, खिलौने हो या एजुकेशनल चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें हमें ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है. तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया. फिर सॉल्यूशन के पास हम आते हैं. यस सर. हेलो सर, हमारी टीम ने ये प्रॉब्लम के बारे में सोचा है. जो स्कूल का जो पहुंच मार्ग है वो लगभग
2 से 3 किलोमीटर लंबा सर 2 लाइन से जुड़ा हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो लगभग 15 से 20 मिनट में 2-3 बार जो है वहाँ पर जाम लगने की स्थिति बनती है। इससे स्कूल आने वाले बच्चे और सारे कर्मचारी वगैरह सब लेट हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, अभी इसमें एक बात बोलता हूँ मैं कि एक प्रॉब्लम जो है आप फेस कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम इसको आप ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखते हो कि सेम प्रॉब्लम अलग अलग जगह पे सब जगह, जैसे पुणे में मैं देखता हूँ जहाँ मेरा वर्किंग प्लेस था, वहाँ एक चौक है, वहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। और ऐसे बहुत सारे बैंगलोर सिटी में, पुणे में, दिल्ली में, कहीं पे भी देखो सब जगह पे ऐसी चीज़ें हैं कि जाम लगे रहते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो गया, सो ब्रॉडर पिक्चर में यू कैन नॉट बिल्ड अ प्रोडक्ट टू जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम कि एक चौराहे पे हो रहा है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट बनाया और ख़त्म हो गया, तो फिर आप कमर्शलाइज नहीं कर पाओगे, तो ब्रॉडर पिक्चर में देखना पड़ेगा। अब जब ब्रॉडर पिक्चर में आप देखोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? ये आपको, आप ये समस्या फेस कर रहे हो, बट वो समस्या आ क्यों रही है, उसकी जड़ क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब जड़ पता चलेगी तब आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके सर। यस। हेलो सर, नमस्ते सर। हमारी जो फ्रेंड्स ग्रुप है इनका कॉन्सेप्ट है घरेलू महिलाओं को रोजगार देना। अक्सर हम सुनते हैं कि ये महिलाएं कुछ नहीं करती है। अक्सर सुनने में आता है कि जैसे किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो ये कुछ नहीं करते, हर कोई अपना जॉब बताते हैं। तो हम उन घरेलू महिलाओं और बेरोजगारी के निराकरण के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो आप इम्प्लीमेंट हम करके दिखा देंगे आपको सर। ठीक है, ओके, तो विल स्टॉप हियर फॉर विथ योर प्रॉब्लम्स। नाउ सर विल टेल अस हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत वेग वे में देखते हैं, बट हमें स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है उसको अगर हमें डिफाइन करना आ गया तो हम उसको सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सर, हमारी प्रॉब्लम है कि पर्यावरण समस्या शहर के द्वारा, जिला के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हर वर्ष लाखों पौधे लगाए जाते हैं। मैं इंदौर ज़िले की इको क्लब की नोडल ऑफिसर भी हूँ, एक पेड़ मार के नाम की भी। तो हम देखते हैं कि लगातार हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, लेकिन वास्तव में मौसम के परिवर्तन के अनुसार वो पुनः पौधे जो हैं, तो ऐसा कोई ये प्रॉब्लम है हमारी कि इन पौधों को पूर्णतः कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कोई गाइडलाइन बनना चाहिए। एक्चुअली जो मैम कहना चाह रहे हैं, इसके साथ ही हमारा जो मेजर फोकस है वो उन वर्किंग क्लास फैमिलीज़ पे है, एज ग्रुप बिटवीन 25 to 40। वर्किंग क्लास होते हैं, प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, गार्डन लगाते हैं, रेयर प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, बट स्टिल टाइम की कमी के कारण या जब फैमिलीज़ वेकेशंस पे बाहर जाती हैं तो, और दूसरा उनको वाटर नीड्स, न्यूट्रिशन नीड्स, पैथोजेंस इफ दे आर अटैकिंग, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेज दोज प्लांट्स विल फेस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिससे वो गार्डन पूरा ख़त्म हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेगलेक्ट और इग्नोरेंस। सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ओके, एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको अभी हमें क्लब करके डिफाइन करना पड़ेगा सर। So yesterday we were trying to understand this problem statement, a case study so with the help of a case study. The case study that we have taken is traffic problem. So traffic problem for employees. So 6 parameters, 6 blocks बनाया था हम एक पेज पे। So ये 6 block पे पहला context, कब हो रहा है ये problem, so every working day only. So this problem will not exist for 365 days. So it happens only during working days. In working days again, morning and evening peak hours. और उसके बाद जो है कि so what is the root cause of the problem? Exactly problem root cause क्या है? So it's a traffic problem. So उसके बाद से daily so they are losing the time. Then after that alternatives क्या है? So alternatives instead of public transportation, so they can go for Uber, Ola or else private cabs. ये तो alternatives already existing है market पे। और customers, exactly who are the customers of this particular who are facing this particular problem? Customers कौन होता है traffic? So especially the employees or working group people who are in cities or urban areas where there is traffic issue.
रिमोट प्लेस पे नहीं तो एक प्लेस पे जो किधर ट्रैफिक ही नहीं है, so those people will not face this particular problem at all. So only this is the case with the urban areas or cities. And then after that, the quantifiable impact. So number, so what is exactly they are losing, maybe 40 hours or 30 hours, so time waste. Alternative shortcomings क्या है? So alternatives में again disadvantages क्या है? So अगर Uber book किया तो so it may be expensive, and again Uber immediately नहीं मिलेगा, maybe they will need to wait for 5 minutes or 10 minutes. So वो सब problems है. Now problem statement should consist of all this particular 6 parameters. All the 6 parameters which are present here. So वो सब problem statement में आना चाहिए. So this is the well-defined problem statement for this case study. So एक बार so if we look into this, so about 2 paragraphs, about 11 lines are there. So the first line says many city office goers between the age group of 25 to 35. Who are facing this problem? City office goers. And what is the customer segment? Between 25 to 35 age. So the first box. Who has a problem? So the first column, the second one, bottom one, young men and women between 25 to 35 age group. So that is mentioned in the first 2 lines. उसके बाद क्या है? So what is the problem actually? What is the exact problem? So struggle to find reliable and convenient transportation options for their daily short distance travel from suburban to urban areas. So first line so we mentioned who exactly are facing the problem. So the office goers, employees, they are facing the problem. And also we are mentioning their age group also between 25 to 35. So the most of the people fall in that bracket. And next, so what is the exact problem they are facing? So they are facing difficulty in finding a reliable transportation from moving to suburban to urban areas. So that is the problem they are facing. And next, so bottom paragraph, what exactly they are losing? Every week 40 hours चले जा रहा है इस traffic में, so that is a quantifiable parameter. 40 hours of week loss. Next, existing कुछ alternatives है? Yes, existing alternatives भी है. Existing alternatives क्या use कर रहे हैं? Public transportation use कर रहे हैं, और Uber, Ola, private cabs वो भी use कर रहे हैं. लेकिन फिर भी so वो भी crowded and inconvenient for these computers. So in the same way, we also need to formulate our problem statement. Whatever now you have explained the different problems. In that problem, so you need to mention who exactly are facing the problem. Oh, problem का root cause क्या है? So if we know about the root cause of the problem, then we can come up with a solution easily. A root cause नहीं पता तो we cannot come to exact solution for that. Exact solution for that. So पहला, who are your the customers who exactly are facing the problem? Then root cause क्या है? So इस problem से loss क्या हो रहा है? Health of the individuals, or else time waste, or else revenue loss, or pollution. So exactly क्या हो रहा है? So the problem. और existing कुछ alternatives है, कुछ है क्या? So ये problem को resolve करने के लिए. So we cannot say that so this is not the problem faced by, I mean there is no other alternative, this is a new novel problem. No. So almost all the problems are having solutions, some solution or the other solution, but it may not be perfect, or it may not be appropriate in terms of revenues, or in terms of comfortability, or in terms of access. But there are some solutions. So हम वो solutions की भी identify करके वो solution में क्या shortcoming है वो identify कर तो then easily we can arrive at the solution. So this is the sample problem statement which consists of all these particular 6 parameters in that statement. Yes, so आपके पास अभी पेपर्स है और आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है. अभी 10 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 10 मिनट्स ओनली फॉर यू. आपका प्रॉब्लम आप डिस्कस करो और ये 6 पैरामीटर्स में कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव्स, कस्टमर, इमोशनल इम्पैक्ट एंड अल्टरनेटिव शॉर्ट कमिंग्स, मतलब क्या अल्टरनेटिव्स है और उस अल्टरनेटिव्स में क्या प्रॉब्लम है, इस पैरामीटर्स में एक साइड में आपको ऐसे 6 ब्रैकेट्स करके आपको डिफाइन करना है. एक ग्रुप में एक को ही करना है, मतलब CEO शुड डू दैट, बट आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ये करना है नेक्स्ट 10 मिनट्स में. आपका जो भी प्रॉब्लम है
उनको इन 6 पैरामीटर में डिफाइन करना है। अभी डन हो गया, 10 मिनट हो गए। हाँ सर, पहला पॉइंट जो है कि समस्या कब उत्पन्न होती है, तो वो है जब स्कूल नए सत्र में प्रारंभ होती है तब समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या है, पर्याप्त संख्या में पुस्तकें जिले में आ नहीं पाती है। अब प्रिंट होती है नहीं होती वो अपनों को पता नहीं है, पर आ नहीं पाती है। तीसरा है अल्टरनेटिव में कि अब बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलती तो उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदना पड़ती है। कस्टमर में है क्लास 1 to 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। 5th में है इमोशनल इम्पैक्ट में ये है कि उनको क्लास में जो दूसरे बच्चे जिनके पास पुस्तकें हैं उनके मुकाबले उनको हीन फील होता है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते। और क्वांटिफिएबल में ये है कि उनको पुस्तकें जो है स्कूल में जिनके पास बच्चों के पास पुस्तकें हैं उनसे मांग के लेना पड़ती है और वो कुछ समय के लिए मिलती है जिनमें उनका समय जाता है। लास्ट में अल्टरनेटिव शॉर्ट कमिंग में है दूसरे बच्चों से स्कूल समय में कुछ समय के लिए पुस्तकें पढ़ने के लिए लेना पड़ती है, मिलती है नहीं मिलती है, कुछ घर के लिए मिलती है, तो उसमें समय उनका बहुत जाता है। बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। सर अभी एक दो लाइन में हिंदी में चाहे इंग्लिश में उसको एक पूरा स्टेटमेंट एक लिख लीजिए, जैसे आपने अलग अलग इसमें लिखा है। हाँ, उसी को 2-3 लाइन में एक स्टेटमेंट बना लीजिए तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। सर को माइक दीजिए। प्रॉब्लम्स जो है मुख्य रूप से हंगर सर, मेट्रो सिटीज़ में लोगों का भूख के कारण जो है पौष्टिक और ताज़ा भोजन की अनुपलब्धता। अब कॉन्टेक्स्ट में 24/7 या हम कहें सुबह से शाम तक समयाभाव के कारण नाश्ते एवं भोजन की अनुपलब्धता, मेल न्यूट्रिशन भी इसमें है, फास्ट फूड का अधिकता में उपयोग करना भी इसमें है। कई लोगों को कार्य की अधिकता के कारण वे अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। इसके कारण समयाभाव और समयाभाव के कारण जो है उनको भोजन सप्लाई करना। कस्टमर्स जो रहेंगे हमारे, उसमें हमारे कस्टमर्स सभी रहेंगे, बच्चे, बूढ़े और जवान, व्यापारी, कार्यरत महिलाएं, बाहर से पढ़ने आने वाले बच्चे, सिंगल मैन एंड वीमन। प्रॉब्लम जो है वह यह है कि समयाभाव के कारण भोजन एवं नाश्ते की अनुपलब्धता और समय का अभाव। इमोशनल इम्पैक्ट इसमें यह है कि घर के भोजन की कमी को महसूस करना, पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता, ताज़ा एवं गर्म भोजन की अनुपलब्धता। अल्टरनेटिव्स में टिफ़िन एवं मेनू जो है कस्टमाइज रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति चपाती चाहता है सिर्फ चपाती उसको उपलब्ध कराई जाएगी, कोई दाल चावल चाहता है उसको दाल चावल उपलब्ध कराया जाएगा, कोई अगर पूरी थाली चाहता है, सारा भोजन चाहता है तो उसको सारा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अल्टरनेटिव शॉर्ट कमिंग्स में यद्यपि ये शॉर्टली एक्सपेंसिव होगा बट हाइजीन जो है इसमें मेंटेन रहेगी, हाइजीनिक जो है भोजन जो है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर अच्छा है, बस कस्टमर के बारे में जो बोला ना कि सब लोग कस्टमर है, मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, सर भी नहीं है। श्याम सर कहाँ गए हमारे? श्याम सर भी हम आपके कस्टमर नहीं है, नहीं बनेंगे हम हमें बनना ही नहीं है। हाँ, मतलब मेरा यहाँ मुझे पॉइंट ये बनाना है कि आगे का पॉइंट वही है, हम जो आगे अभी सीखने वाले हैं कि हमारे सब लोग कस्टमर नहीं होते हैं और हमें सबको टारगेट करना भी नहीं होता है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो वो सबको टारगेट नहीं करती है, स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करती है। और वही हमारा आगे का भी कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। सो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आप इसके ऊपर काम करते रहोगे और ये आपका काम होता रहेगा। धीरे धीरे आप करते जाइए और आज का पूरा दिन लीजिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना एक ऐसी एक्टिविटी है कि उसको बहुत
टाइम लगता है, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप डिफाइन कीजिए। अभी नेक्स्ट चीज़ों पे हम जो जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन क्यों अभी कस्टमर सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है? हम जो भी प्रॉब्लम अभी हमने आइडेंटिफाई की है, वो प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है? कस्टमर की प्रॉब्लम है। और जब तक हम कस्टमर को समझेंगे नहीं, एम्पैथी, राइट, डिज़ाइन थिंकिंग, जब तक हम कस्टमर को समझेंगे नहीं, तब तक हम सॉल्यूशन नहीं बिल्ड कर पाएंगे, राइट? तो सॉल्यूशन हम बाद में बिल्ड करेंगे। आपने जो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, सबका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, बट वो सॉल्यूशन बाद में होगा। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पहले समझना है कि हमारा कस्टमर कौन है, ठीक है? तो अभी एक कस्टमर को समझने की प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे सर ने कहा कि सब लोग मेरे कस्टमर हैं, बट सब लोग आपके कस्टमर नहीं। क्या जैसे इनमें से ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, आप में से कितने लोग अपने अपने घर पे रहते हो? ऑलमोस्ट सभी। आप सब लोग घर का खाना खाते हो? घर से टिफिन मिलता है? मतलब आप घर से टिफिन लेके जाते हो, जैसे आप खुद बनाते होंगे। तो अगर आपको घर से टिफिन मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है, क्या आप सर का टिफिन लोगे? नहीं लेंगे। देखो, राइट, तो यस, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। आपने सही कहा सर कि सब लोग आपके कस्टमर है ही नहीं। अभी डिफाइन कर रहे हैं हम कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, वो आपके प्राइमरी कस्टमर हो गए, क्योंकि उनको घर का खाना नहीं मिल रहा है, राइट? अभी जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो अगर उनमें भी सब बाहर रहने वाले लोग आपके कस्टमर है क्या? सब लोग होंगे। जो रोड पे रहते हैं वो भी होंगे, जिनके पास पैसा नहीं उनको भी आप फ्री में खाना खिलाओगे? क्यों हो सकता है? तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, फिर आप तो चैरिटी करने लगोगे, सेवा करने लगोगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो सब लोग आपके कस्टमर नहीं है। जो बाहर रहने वाले सब लोग आपके कस्टमर नहीं है, क्योंकि बाहर रहने वाले वैसे मे बी 1% लोग ऐसे होंगे कि जो खुद से खाना बना भी लेते हैं। 1% होंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है? वो आपके कस्टमर नहीं रहेंगे। अगर आप जो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर ने बताया कि हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा, हो सकता है कि उसकी प्राइजेस ज़्यादा हो, ये आपका स्टेटमेंट था सर। तो अगर आपकी प्राइजेस ज़्यादा है तो सब लोग क्या आपके कस्टमर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो वो जो कस्टमर है, तो आपको एक पहले तो आपको एक इनकम ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा। पहला क्राइटेरिया होगा कि बस बाहर रहने वाले लोग आपके कस्टमर है, काम करने वाले लोग आपके कस्टमर है, जो काम पे जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, वो आपके कस्टमर है, हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपका प्राइस अगर ज़्यादा है तो आपको एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी कि उसका इनकम ग्रुप मिनिमम कितना होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 25 या 30 हज़ार तो वो कमाता होगा, या 20 हज़ार कमाता होगा, तभी वो आपका खाना अफोर्ड कर पाएगा, राइट? सो हम उसका इनकम डिफाइन कर पाएंगे। तीसरी चीज़, इंदौर में पूरे इंदौर में जिनका इनकम 25 हज़ार है और जो लोग बाहर रह रहे हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, क्या वो सारे लोग आपके कस्टमर हैं? नहीं है, क्योंकि तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आप सब लोगों तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? तो आपको एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एरिया में आप सर्विस आपकी स्टार्ट करने वाले हो। तो एरिया हो गया, इनकम हो गया। एज ग्रुप भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि बाहर रहने वाले जो एकदम छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या फिर 16 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, क्या वो आपके कस्टमर बन पाएंगे? तो आपको एज ग्रुप भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से एज ग्रुप पे। अभी आपको जेंडर भी डिसाइड करना पड़ेगा, बट हो सकता है आपके केस में बोथ जेंडर के लिए आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? सो हम जब डीपर जाते हैं, आपने कहा था सब लोग आपके कस्टमर हैं, तो अभी हमें क्या पता चला कि आपके सब लोग आपके कस्टमर नहीं। इंदौर में रहने वाले सब लोग आपके कस्टमर नहीं है। इंदौर में जो बाहर से लोग आए हैं और जो लोगों के पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे लोग आपके कस्टमर है जिनका इनकम 25 हज़ार से ज़्यादा है, और जो लोग एक
पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, क्योंकि आप पूरे इंदौर में सर्विस नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको कस्टमर पता चला कि आपका कस्टमर कौन है। अगर ऐसे कस्टमर को टारगेट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, और ऐसे कस्टमर के लिए अगर प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या बनाना होगा। ये एक हो गया, आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अगर हम किसी भी चीज़ का करें, जैसे मैंने आपको संतूर का एग्जाम्पल बताया था, आपको क्या लगता है संतूर के लिए कस्टमर्स कौन है? संतूर तो सबको पता है ना। हाँ, तो कौन कस्टमर है संतूर के? सब लोग। लेडीज, ओके। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना कि क्या संतूर सब लोगों के लिए बनाया जाता है क्या? संतूर बनाने वाली कंपनी क्या यह कहती है कि मैं सबके लिए बना रहा हूं? नहीं, किसके लिए बनाते हैं? क्या प्राइस होती है इसकी? संतूर की प्राइस क्या होती है? कस्टमर नहीं है। देखो, आप खुद भी कस्टमर नहीं हो उसके। जी हाँ, कस्टमर हो जाएंगे, जेल बनाया तो देखिए, संतूर जो प्रोडक्ट बनाता है एक अफोर्डेबल कैटेगरी में वो बना रहा है। 10 रुपए से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है। मतलब वो टारगेट कर रहा है ऐसे लोगों को जिनकी इनकम ग्रुप लो है, राइट? जिसका पैकेजिंग भी एक पेपर का होता है, बहुत अच्छा पैकेजिंग भी नहीं होता उसका, और उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े मॉडल्स या एक्टर यूज़ नहीं करते, वो कोई भी वर्किंग फैशन आइकॉन को यूज़ नहीं करते हैं, राइट? तो क्योंकि उनका जो एडवर्टीजमेंट है, उनका जो टारगेट मार्केट है वो लिमिटेड है। वो सबके लिए नहीं बनाना चाहते, वो ऐसे लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप है, राइट? जिनको हम बॉटम अप पिरामिड बोलते हैं। तो लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो 10 रुपये सोप को 10 रुपये का सोप यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए वो बनाया जाता है। वेराज अगर हम एग्जाम्पल ले डव सोप का, तो डव कितने में आता है? 40-50 रुपए में। तो थोड़ा हायर इनकम ग्रुप है, राइट? उसमें पैकेजिंग अच्छी होगी, प्लस उन्होंने उसमें कैटेगराइजेशन ऐसा किया है कि जो लोग चाहते हैं कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट वैसे ही होती है, राइट? तो एक स्पेसिफिक थिंकिंग वाले लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हायर इनकम ग्रुप में हैं और वो जो चाहते हैं कि अपनी स्किन मॉइस्चराइज रहे, क्लीनिंग भी हो, बट क्लीनिंग करते टाइम हमारी जो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ऐसी जिनकी सोच है उनके लिए वो बना रहे हैं, वो सबके लिए नहीं बना रहे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पानी की बोतल, बिस्लरी। क्या बिस्लरी के सब लोग इंडिया में जितने लोग रहते हैं, क्या वो सब लोग बिस्लरी के कस्टमर हैं? क्या बिस्लरी चाहती है कि इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन सब लोग अब बिस्लरी खरीदे? पानी तो बेसिक नीड है ना, सबको प्यास लगती है। तो क्या बिस्लरी के सब कस्टमर हैं? कौन है? मिडिल क्लास, मे बी इन अर्बन एरियाज ओनली और सेमी अर्बन एरियाज, या फिर हम भी उसी टाइम पे पीते हैं जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे पास पानी नहीं है, तो ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़ती है तभी पीते हैं, अदरवाइज नहीं पीते, क्योंकि अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है। सो पानी हो, सोप हो सर, या टिफ़िन सर्विसेज हो, हम कभी ये नहीं कह सकते कि सब लोग हमारे कस्टमर है। हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है कि एग्जैक्टली कस्टमर है कौन। जैसे डव का मैंने एकदम आपको एग्जांपल दिया कि बस ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहा है जो हायर इनकम ग्रुप है, जो 40-50 रुपये खर्च कर सकते हैं सोप पे, और जिनके माइंडसेट ये है कि मुझे क्लीनिंग तो करना है, उसके साथ साथ मुझे मेरे बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखना है। तो मॉइस्चराइजेशन के बारे में इंडिया में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। एक छोटा सा ग्रुप ही है ऐसे सोचने वाला कि जो डव यूज़ करता है, राइट? ऐसे हर एक प्रोडक्ट में होता है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैंने जैसा कि आपको बताया
कि मेरे जो कस्टमर होंगे तो मुझे लगता है सभी होंगे, क्योंकि फलों में रसायन जो उपलब्ध रहता है तो उसमें जांच हो या उसके लिए कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए। तो इसको मैंने जो कैनवास बनाया है, कॉन्टेक्स्ट जो है आपका दूषित फल है या फलों में रसायन की समस्या, ये प्रॉब्लम है। इसमें कस्टमर्स सभी लोग, कंज्यूमर्स, फार्मर्स, फ्रूट सेलर्स, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खाते हैं फलों को। करंट सिचुएशन में बिना जानकारी के रसायन युक्त फल खरीद करके हम लोग खा लेते हैं, जिससे कि उपभोक्ता उसको पहचान नहीं पाता और बीमार पड़ने के डर रहते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट वही बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा है, लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां आजकल फ्रूट्स को खाने से भी, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा केमिकल आता है, तो ये प्रॉब्लम आजकल चल रही है। इसका रूट कॉज भी वही कीटनाशक का अधिक उपयोग है और फलों को जल्दी से पकाने के लिए, अपनी बिक्री ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग ये कार्य कर रहे हैं जी। और दूसरा, इसमें गुणवत्ता की जांच की निगरानी की कमी है, शासन प्रशासन या जो भी है। अल्टरनेटिव जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ऐसी व्यवस्था विकसित हो जिससे फलों में मौजूद हानिकारक रसायनों को आसानी से हम पहचान सकें। फलों में रसायन की जांच करने वाला कोई ऐसा कम लागत वाला उपकरण या मोबाइल आधार प्रणाली हो जिससे कि हम इससे जानकारी ले सकें और उपभोक्ताओं को उसके बारे में जागरूक किया जाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैम। अभी मैं पहले मैम के एक सवाल का जवाब देता हूँ। मैम बोल रही कि सब लोग कस्टमर है, तो नहीं है। मुझे बताइए, आपको क्लासमेट पता है, नोटबुक बनाता है वो, है ना, उसका कस्टमर कौन है? आप एज ग्रुप डिफाइन कर सकते हो? वो हर व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड रहता है। वो हर एक व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, ओके। बट मेजरली कौन खरीदता है? स्टूडेंट्स। गलत। शौकीन बच्चे होते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि बच्चे क्लासमेट के कस्टमर है ही नहीं। पेरेंट्स है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आप घर पे खाना लेके जाते हो और घर में बच्चे खाना खाते हैं, तो बच्चे कंज्यूमर हो गए और आप कस्टमर हो गए। आप घर में बाजार में जाते हो, सब कुछ बाजार में जो भी घर में चीज़ें आवश्यक होती है वो सब बाजार से लेके आते हो, दुकान से लेके आते हो, सोप लेके आते हो, टूथपेस्ट लेके आते हो, सब आप लेके आते हो। और घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग, सब लोग उसको यूज़ करते हैं, तो कस्टमर आप हो गई, बाकी सब कंज्यूमर हो गए। और हमें टारगेट कस्टमर को करना है, क्योंकि पैसा हमको कस्टमर से आ रहा है, कंज्यूमर से नहीं। ठीक है, तो जैसे आप, पहली कॉन्सेप्ट तो ये हो गई कि कस्टमर एंड कंज्यूमर अलग है। कंज्यूम सब लोग कर सकते हैं, कस्टमर सब लोग नहीं होते। दूसरा, जैसे आप अवेयर हो फलों के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि फलों में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स ही खाते हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ऐसा ही खाना खाते हैं, यही खाना खाएंगे, हम एक्जॉटिक वेजिटेबल खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। तो उनके लिए तो ऑर्गेनिक फूड का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और एक चीज़, इसमें और चीज़ें ऐड हो जाती है कि बहुत सारे लोग इस समस्या के बारे में अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ये समस्या है, तो वो लोग भी आपके कस्टमर नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो खा लेते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि अल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मैं भी खा लेता हूँ। मुझे पता भी है कि फलों में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, हम सबको पता है कि आज कीटनाशक वगैरह यूज़ होते हैं, जिसको क्या अंतर प्रवाही कीटनाशक वगैरह बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है और वो हमारे हेल्थ को हार्म कर रही है, हम सबको पता है, बट हम सब यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बीमार भी हो रहे हैं ना। तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके लिए सब कस्टमर नहीं होंगे।
अभी यही कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कस्टमर आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमारा कस्टमर कौन है उसको हमें डिफाइन करना होता है, और उस चीज़ को बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंट्स, या उस प्रोसेस को बोलते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। तो वो अभी हमें, आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसके लिए हमें कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई करने। तो उसमें 4 सेगमेंट हैं। यस, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, जोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ये अभी हम थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करेंगे। So if we analyze any advertisements, whether it is Santur advertisement or else Complan advertisement, Boost advertisement or Ariel, all these particular so 4 segmentations. So who is your customer? So where from his geographic location? What kind of customers they are? All these things will be covered in 1 to 2 minutes of that particular advertisement itself. So they are the main target people who are so directly shown in the TV advertisements. The rest of the people will be adding. कंपनीज क्या करती है, जैसे कंपनीज को अगर ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करना है, ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है, जैसे कैडबरी का आपने एग्जांपल बताया कि वो पहले ना 5 रुपए में भी आती थी, अभी सबसे कम से कम 10 रुपए में आती है। हाँ, वो 5 वाली आती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो छोटे छोटे गांव में बच्चे जो 5 रुपए में सच कुछ ले सकते हैं, जैसे पहले पार्ले जी लेते थे तो अभी कैडबरी लेने लगे हैं। तो वाई दे बिल्ड दैट प्रोडक्ट, क्योंकि दे वांट पीपल टू बाय दैट, मतलब जो लो इनकम ग्रुप के भी लोग हैं तो वो भी उसको बाय कर पाए, इसलिए उन्होंने अलग प्रोडक्ट का अलग डिज़ाइन बनाया। सो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक 40 रुपए की कैडबरी बनाई और सोचा कि सब लोग इसको खाएंगे। हर एक फाइनेंशियल कंडीशन को अफोर्ड करने के लिए उन्होंने बना दिया। अभी इस सर आप डिफाइन करेंगे। मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, हमें टी ब्रेक लेना है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी में 4 चीज़ें आती है। डेमोग्राफी में आता है एज, इनकम, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन। डेमोग्राफी इज ऑल अबाउट आपका एज कितना है, तो हमें कस्टमर का एज डिफाइन करना होता है। हर जो, जैसे मैंने क्लासमेट का बोला कि जो छोटे बच्चे वो उसके कस्टमर है नहीं, पेरेंट्स जो पैसा खर्च करते वो कस्टमर है। तो पेरेंट्स की एज ग्रुप क्या रहेगी? मे बी 25 से लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, या 28 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, 25 से 50 तक, राइट? तो हमने एज ग्रुप डिफाइन कर लिया, राइट? सो इनकम हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मिनिमम इनकम कुछ होना चाहिए। अगर खरीदना है तो मिनिमम इनकम तो होना चाहिए, राइट? क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कुछ प्रोडक्ट के लिए क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। जैसे आप कोई टेक सेवी प्रोडक्ट बना रहे हो, या कुछ ऐसे ऐसा प्रोडक्ट है जो समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये भी समझना चाहिए कि उस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कल हम बात कर रहे थे, तो मिनिमम 10th होना चाहिए, या कुछ तो क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए। तो हर एक का क्वालिफिकेशन भी डिफाइन होता है। तो इनकम, एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन, ये चारों चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती है। ये हमारा जो भी कस्टमर होता है उसका वो डेमोग्राफिक हमें डिफाइन करना होता है। देन आता है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। सारे प्रोडक्ट्स सबके लिए नहीं बनाए जाते। फॉर एग्जांपल जेप्टो है, जेप्टो पता है आपको? क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि आप जो भी मंगाते हो 10 मिनट में आपके घर पे आ जाता है। तो जेप्टो पुणे में अवेलेबल है। मैं पंजाब में गया था, चंडीगढ़ में वो अवेलेबल नहीं है, लुधियाना में अवेलेबल नहीं है, दिल्ली में अवेलेबल है। और रूरल एरियाज़ में क्या जेप्टो अवेलेबल है? स्विगी, जोमेटो रूरल एरियाज़ में अवेलेबल है? नहीं है, राइट? राइट, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर वो अवेलेबल कराते भी है तो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, उनके लिए कॉस्ट बहुत जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट उनका बढ़ जाएगा। तो उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बस ऐसी सिटीज़ में या फिर अर्बन एरियाज़ को ही वो टारगेट करेंगे। ओला, उबेर रूरल एरियाज़ में नहीं अवेलेबल होता,
अर्बन एरियाज में ही अवेलेबल होता है. सो दे डिसाइडेड द जियोग्राफी ऑफ देयर ऑपरेशन कि वो बस इस एरिया में ही काम करेंगे, राइट? तो वैसे ही जैसे आपका भी है कि आपको एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि किस एरिया में आप ऑपरेशन करने वाले हो, किस एरिया में आप आपका बिजनेस वर्क करने वाले हो, उस एरिया को कस्टमर आपके टारगेट रहेंगे. तो आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बस रूरल एरिया के लिए होते हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप के लिए होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट होते हैं बस अर्बन के लिए ही होते हैं जो रूरल में नहीं मिलते, राइट? तो वो जोग्राफिक हो गया. देन साइकोग्राफिक, कस्टमर की साइकोलॉजी के समझ के कि कस्टमर क्या चाहता है, क्यों वो प्रोडक्ट बाय करेगा, उसका मोटिवेशन क्या रहेगा उसके पीछे, तो वो समझना पड़ता है हमें. और वो समझ उसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. आई वुड लाइक टू ऐड. यस. सो सर ने एक प्रॉब्लम बताया था सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूसेज के लिए. सो एक्सपेंसिव, दे आर बिकमिंग टू एक्सपेंसिव. सो इधर आगे सर बता रहा दिल्ली गवर्नमेंट में सब्सिडी दे दिया 80,000 ऑन 2 व्हीलर्स एंड 1,20,000 सब्सिडी. सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ साइकोग्राफिक motivational factor. And the other thing is so EMI options. So automobile dealers or companies, they will say that so there is 0% so down payment and you can take a vehicle directly straight away. Finance also we only will arrange directly out from the automobiles. You won't need to roam around banks and all. So such things so will be motivating. Such things will be adding for the sale of your products. एंड लास्ट वन है बिहेवियरल, कि कस्टमर का बिहेवियर क्या रहेगा. अभी कस्टमर का बिहेवियर मतलब क्या, जैसे रूरल एरियाज़ में टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा होटल में या घर बाहर जाके चाय पीना या ये सब चीज़ें नहीं करते या ज़्यादा होटलिंग नहीं करते, वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, राइट? सो प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो कस्टमर की पैसे खर्च करने की कैपेसिटी और पैसे खर्च करने की टेंडेंसी कितनी है, राइट? अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, लोग लोन लेके भी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, बट रूरल एरियाज़ में वो टेंडेंसी कम होती है, लोग पैसे कम खर्च करना चाहते हैं, राइट? या फिर अपना अलग बिहेवियर. आजकल तो सोशल मीडिया बिहेवियर भी चेक किया जाता है, और इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, बट अभी हम एक टी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं.